So let us discuss about syllabus of half yearly exam. For class 10, from chemistry part, 5 chapter will come: chemical reactions and equations. Okay, acid, base, and salt. These classes are given details. You can see the old videos. Matter and non-metals, carbon and its compound, periodic classification of matter element. Okay, and from physics part, light chapter, where you have to know about reflection and diffraction, human eye, and the colorful world. Okay, I will give revision of these two chapter. Okay, light and human eye. Electricity, revision is also given. Okay, the revision is also given, and all classes is also given. Magnetic effect of electric current. Here also I would like to give revision. Okay, so I have to give revision of what? 3 chapters: magnetic effect of electric current, light, and human eye. So from physics and chemistry, these are from physics part, and these are from chemistry part. 9 chapters is there. Okay, and from biology, syllabus will decided by Qualman. And apart from this, only we have 1 or 2 chapters. Okay, 1 or 2 chapters there. They are very simple chapter, theoretical chapter. Mainly these are the main conceptual chapter. Okay, so in magnetic effect of electric current, let us discuss a little bit. And in next video, I will give the details. So here, first of all, you have to know the Oersted experiment. Oersted told that a moving charge means electric current. A moving charge is there. If a current is passed through a wire, so around that current wire, a magnetic field is produced. Okay. If this is the direction of current, this is the direction of current, then this is the direction of magnetic field. This is the direction of magnetic field, B. Magnetic field is denoted by B. It means current carrying conductor produce what? Magnetic field. Very, very important. Current produce magnetic field. Okay. Current produce magnetic field. This is very, very important. Electric field, electric fan, electric motor, all are based on this concept. Current can produce what? Current can produce magnetic field. And this concept was first given by Oersted. And how much magnetic field is produced, that is given by Biot-Savart law. You will get details in class 12, which is given by dB is equal to, dB means small magnetic field, is equal to mu naught by 4 pi I dl sin theta by a r square. Okay, r square. Actually now, see. Suppose we have a wire having length L. Suppose here current is going on in upward direction. So suppose I have to calculate magnetic field here. Now see, तार को अगर हम पार्ट करते हैं, यहाँ पे dl होगा, यहाँ पे dl होगा, यहाँ पे dl होगा, छोटे-छोटे पार्ट में भाग कर दो. अभी देखो इस dl का कंट्रीब्यूशन कुछ और होगा. यहाँ पे डिस्टेंस मान लेते हैं r है, तो ये r सबसे कम होगा, छोटा होगा, मतलब मिनिमम होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा. इसका मतलब इस dl का कंट्रीब्यूशन, इस dl का कंट्रीब्यूशन, इस dl का कंट्रीब्यूशन अलग अलग है. इसलिए हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिख सकते. हम लोग सिर्फ छोटा सा dl के लिए, छोटा सा लेंथ के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, दैट इज dB. यहाँ पे थीटा है, ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम मिलता है. ओके, तो यहाँ से ये पता चलता है कि आपका I तो करंट है, ये तो फिक्स्ड है, म्यू नॉट बाई 4 बाई ये कांस्टेंट है, dl ज्यादा होने से मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगा. साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है. साइन 90 का वैल्यू मैक्सिमम होता है, तो dB मैक्सिमम होगा. अगर इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट? इस पॉइंट में थीटा कितना होगा? 0 डिग्री. एंड साइन 0 कितना होता है? 0 होता है. तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड इन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट? सो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, in the direction of current, the magnetic field is 0. Magnetic field is maximum in the perpendicular direction of what? Current.
दैट्स व्हाई हियर sin थीटा इज यूज्ड। और जितना तार यहाँ पे है, जितना दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना कम होते जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड बायोट-सावर्त लॉ। विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला we can calculate magnetic field producing by current wire और current carrying conductor। तो इतना तो पता चल गया करंट क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक फील्ड फैक्टर क्वांटिटी है, जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो भी हम लोग मालूम चल गया। तो यहाँ पे तो सबसे पहले मैंने स्ट्रेट कंडक्टर लिखा है। स्ट्रेट कंडक्टर का टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? स्ट्रेट कंडक्टर है, सीधा तार है, लेंथ L है, इसका वजह से जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है पार्टिकुलर डिस्टेंस में होगा P इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 2πa। यहाँ पे R का जगह मैंने A ले लिया डिस्टेंस को। ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड, प्रीवियस जो फॉर्मूला दिया था वो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड था, छोटा सा लेंथ के लिए, उसको इंटीग्रेट करने से मतलब सबके लिए निकाल के हम लोग जब जोड़ेंगे तब ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। ओके, अभी स्ट्रेट कंडक्टर का इतना मैग्नेटिक फील्ड है, ये फॉर्मूला भी याद रखना है। स्ट्रेट कंडक्टर सीधा तार के लिए, अगर उसी तार को अगर सर्कुलर लूप बना दिया, दिस द सेंटर, तो सर्कुलर लूप का ये आपका रेडियस ए होगा, तो इस बार मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? इस बार मैग्नेटिक फील्ड होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 2a। ऐसे करेंगे जाके, ऐसे करेंगे आ रहे हैं। सो रिमेंबर, सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू स्ट्रेट कंडक्टर से क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा होता है आपका सोलेनॉइड में। सोलेनॉइड मतलब इलेक्ट्रिक कॉइल। इलेक्ट्रिक कॉइल का वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम। ओके, कितना होता है वो क्या कैसे इसका ऊपर डिपेंड होता है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और एक वीडियो में इसको रिवीजन में खत्म कर दूंगा। देन आई विल स्टार्ट लाइट चैप्टर। ओके फाइन।